So once again, good morning to all of you. And before we start, we'll start with the name of that Almighty, and then Radhika ji will say something, and then we'll continue with today's topic, that is karma and bhagya. So if you all people can what you call chat from your end also, that will be great with me. So, Radhika ji, over to you, and then we will start. Good morning, everybody. Namaste to all the participants. I think Vinayji has been doing a very good job of spreading his knowledge with all of us, sharing his knowledge with all of us, and I think जैसे अभी हमने देखा है कि लॉकडाउन का भी मतलब या फिर दो फेजेस थे या वेव्स के भी दो फेजेस थे, वेव वन एंड वेव टू. आई थिंक विनय जी इज वेव टू ऑफ लेक्चर्स इज काइंड ऑफ very strong and powerful, and he's managed to choose the topics which are very close to all our hearts and relevant in all our lives. So thanks a lot, Vinayji. I think knowing Vinayji, he's a gentleman. He will not accept any guru dakshina from all of us. But I think as students, what we can give him is implement his learnings in our life and share the benefits with him, whatever we have experienced. And I think that will bring the biggest smile and joy to Vinayji. So humble request to all of you that whatever benefit you have derived after attending Vinayji's wave one and wave two of classes, Kabir and corporate, I think please implement it whatever possible. ऐसा नहीं कि we have to become what do you say, perfect or excellent, but if we start implementing small things, I think we'll all benefit. So I think that is the biggest the dakshina that we can give it to our Guruji. Coming to this topic of karma, bhagya and all, I was just sharing with Vinayji ki last few months I have been also attending this Bhagavad Gita class online, of course. And मेरे जो गुरुजी हैं, he is based out of Canada. So he takes the classes as per the timings in Canada. So in India, it is on Saturday in the night, evenings, late evenings, 8 to 10. एंड वहाँ पे भी ये जो टॉपिक है जो आज विनय जी डिस्कस करने वाले हैं कर्मा, वहाँ पे भी ये टॉपिक काफी क्लासेस में ये डिस्कस हुआ. तो फंडा बहुत ही सिंपल है कि कर्मा इज ऑल अबाउट ड्यूटीज, एंड एज ह्यूमन बींग्स वी हैव बीन प्रिविलेज्ड टू टेक दिस फॉर्म. मतलब हम लोग बेस्ड ऑन आवर कर्मा ओनली वी हैव बीन बोर्न एज ह्यूमन बींग्स, एंड ह्यूमन बींग्स आर अ वेरी strong kind of beings by God. So बहुत ही important है कि in life we do good deeds. Our duties are something that we do in a way that gives positive results. Because आप सबको तो पता होगा आइंस्टाइन का इक्वेशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो अगर अपना एक्शन पॉजिटिव है तो रिएक्शन भी पॉजिटिव होगा, एक्शन नेगेटिव है तो रिएक्शन भी नेगेटिव होगा. सो कर्मा के तीन पार्ट्स, तीन टाइप्स के होते हैं. एक कर्मा होता है, एक विकर्मा होता है और एक अकर्मा होता है. Karma is doing your prescribed duty, vikarma is doing against the prescribed duty, and as I say, akarma is not doing any duty. As per Bhagavad Gita, even doing nothing is wrong, because as human beings we have to do our duties. So this is all that I wanted to share from whatever I have learned, my key takeaways from the class that I attended. And thanks a lot once again, Vinayji, on behalf of all your students. On Sunday, we are your students. So, whatever relationship we have in office or in our personal life, on Sunday, we all are your students. So, thank you so much once again. Thank you, Radhika ji, for your words. And we'll start with this karma and bhagya.
in starting only, I would like to say that maybe whatever we people are thinking about this भाग्य, हो सकता है कि जो मैं बात करने आज जा रहा हूँ, it would be slightly different from what people will be thinking or till now people are thinking. I will start with today's. I will just tell you that today morning I have received a message. मैडम साहनी है, उन्होंने फॉरवर्ड किया था एंड आई लाइक इट एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू. एक सन्यासी गुरुजी हैं जिनका अपना कुछ पूरा आश्रम चलता है जिसमें एनजीओ काइंड ऑफ थिंग्स हैं जिसमें लोगों की वो सेवा करते हैं. ही लैंडेड एट सिंगापुर. तो वहां पे एक स्टूडेंट कॉलेज जा रहा था. तो सन्यासी को देख के विदेशों में आप देखोगे कि ऑलरेडी पीपल आर लाइक एंजॉयिंग और टेकिंग टॉकिंग अबाउट समथिंग. तो वो बंदा इनसे पूछा कि आप कौन हो, सन्यासी दिख रहे हो. तो फॉर इंडिया इट इज नथिंग, फॉर फॉरेन कंट्रीज इट सीम्स टू बी समथिंग डिफरेंट थिंग कि व्हाई एंड व्हाट इज दिस सन्यास एंड ऑल दिस. तो उन्होंने क्या किया कि उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो. उसने कहा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ. बोला कि क्यों, कॉलेज क्यों जा रहे हो? पढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा लेने के लिए. तो बोला कि हाँ. तो बोला कि व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, वी डू हैव गुरुकुल्स. वहां पे आओ, तुमको योग भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा. यू विल बी लाइक अ परफेक्ट मैन. बोला कि तुम आप डिग्री भी दोगे? बोला कि नो. बोला कि नो. सो कॉलेज में अगर मैं जाता हूँ तो आई विल गेट डिग्री. बोला ओके, सो you want degree, not the education. बोला कि yeah, mainly I want a degree. बोला ओके, सो ठीक है, do one thing. सॉरी, do one thing. सो मेरे इंडिया में मैं सर्टिफिकेट, जो भी डिग्री तुमको चाहिए वो सब अवेलेबल हो जाएगा. बोला हो जाएगा? बोला कि हाँ हो जाएगा. बोला ओके, तो उस डिग्री की वैल्यू क्या होगी, क्या उससे जॉब मिल जाएगी? तो उसने कहा कि अरे यू आर टॉकिंग अबाउट डिग्री, फिर जॉब कहाँ से आ गई? बोला कि अरे भाई डिग्री तो इस तभी चाहिए हमको क्योंकि उससे जॉब मिलती है अच्छी. बोलो सो इट मीन्स यू वांट जॉब. बोला कि ऑफ कोर्स. बोला कि ठीक है, एक काम करो, हमारे पास बहुत सारा एनजीओ है, तुमको काम चाहिए तो वी रिक्वायर्ड गुड पीपल एंड यू आर अ गुड पर्सन. सो डू वन थिंग, यू कम टू आवर ऑर्गेनाइजेशन और मैं तुमको काम दूंगा, काम करो, यू विल एंजॉय दिस. बोला ओके ग्रेट. बोला कि तो व्हाट वुड बी द सैलरी? कमाल है यार, you talked about calm, I gave you the job, so from where this money came? money कहां से आ गई? क्या रे, कमाल बात आप कर रहे हो, जॉब करूंगा और मनी नहीं मिलेगी तो फिर? तो मनी तो चाहिए. ओके, सो यू डू नॉट वांट जॉब, यू वांट मनी. तो उसने बोला या ऑफ कोर्स. बोला ठीक है, डू वन थिंग, हाउ मच मनी यू आर रिक्वायर्ड? बहुत कुछ सोचने के बाद उसने बोला 50 million. Like, okay, so what 50 million? 50 million rupees, 50 million dollar, sterling dollar, or what exactly you want? सोच में पड़ गया, उसको नहीं पता था कि कौन सा ज्यादा महंगा है. तो उसने बोला कि स्टर्लिंग पाउंड. बोला ओके, सो ठीक है, तुमको 50 मिलियन दिया, तुम्हारे अकाउंट में रहेगा ये. नाउ टेल मी, बट यू कैन नॉट यूज इट, इट विल बी इन योर अकाउंट. This is your money, but you can't use it. Like then, what is the fun of having that money? भाई पैसा है हमारे पास में, तो क्या करोगे पैसे का? मैं फेरारी खरीदूंगा, मैं घूमूंगा, ड्राइव करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा. बोला क्यों, तुमने तो पैसे की बात की थी, गाड़ी कहां से आ गई बीच में? उसने बोला कि पैसे का फिर क्या मतलब है? बोला कि गाड़ी घुमाओगे तुम, फेरारी घुमाओगे तो उससे क्या होगा? आई विल एंजॉय इट, आई विल लव इट, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशियां मिलेगी. उसने बोला ओके, सो यू डिडंट वांट फेरारी, यू डिडंट वांट मनी, यू वांट हैप्पीनेस, खुशी तुमको चाहिए. बोला कि हाँ. तो विद दिस स्टोरी व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट ऑल ऑफ यू, दैट हम कुछ भी एक्वायर करते हैं, so this is not acquiring exactly the same thing. The purpose or the goal is something else. कोई जॉब करता है, कोई पैसा कमाता है, कोई पोस्ट कमाता है, वो क्यों करता है? खुशी के लिए करता है. एग्जैक्टली इन द सेम वे
अगर हम बात करें तो भाग्य क्या है? भाग्य के 3 पार्ट हैं। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, इट विल हैव सम इम्पैक्ट. द इम्पैक्ट इज कॉल्ड, यू कैन से भाग, यू कैन से रिजल्ट, वट एवर इट मे बी. लेकिन अगर वो इम्पैक्ट, अगर वो फल हमारे फेवर में है, या डोंट टॉक अबाउट फेवर, जस्ट टॉक अबाउट इफ आई लाइक इट. अगर हमने उसे पसंद किया है, देन हम कहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा है. दिस इज माई सौभाग्य, दिस इज फॉर्चून. बाय एनी चांस, if it is not in my favor or not in my favor, if I do not like it, जो मैं चाह रहा था वो अगर नहीं मिला, तो हम कहते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है. अब सवाल उठता है कि वह फल, वह रिजल्ट एज इट इज है, उसको आपने कुछ नहीं किया, जो उसको उस काम से जो आना था वो आया, बट सिंस इट इज नॉट एज पर माई लाइकिंग, वी कॉल इट मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य. और वही चीज अगर हमारे अनुसार हो जाती है, हमारी लाइकिंग के हिसाब से, विच आई एक्सपेक्टेड, वो हो जाती है, हम कहते हैं कि भैया ये हमारा सौभाग्य है. अब सवाल उठता है कि आज के डेट में अगर आप देखोगे तो पीपल आर, every family wants their child to grow as a doctor, IAS, engineer and what not. हम वही बनाना चाहते हैं और हम भी वही बनते हैं. बहुत सारे बच्चे आज तैयारी करते हैं IAS की, डॉक्टर बनने की, और उनको सफलता नहीं मिलती, कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है. सवाल यह है कि क्या आप जो चाहते थे वही सौभाग्य है? हम जहां पे हैं उसको हमने अगर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर ली, वो हमारा सौभाग्य. जैसे आपने बहुत सारे न्यूज में सुना होगा, या बहुत सारी लाइक यू मस्ट बी लिसनिंग लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल न्यूज, यू कैन से. उसमें क्या होता है कि लोग IAS अफसर बन जाते हैं, बहुत बड़े अधिकारी बन जाते हैं, बहुत बड़ा पैसा वाला बन जाता है, और आफ्टर सम टाइम, अभी रिसेंटली हमने सुना था कि एक आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था विदेश में, एंड सडनली ही थॉट कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं अपने देश को छोड़ के, अपने यहां करके. ही वॉज ए ग्रेट इंजीनियर एंड ही लेफ्ट ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर एंड केम बैक टू इंडिया एंड ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर with that technology, with that learning, with that education. और उसने पूरी अपने क्षेत्र के, अपने गांव की पूरी परिभाषा बदल दी खेती की. So he assume or he find himself as a fortunate person. मैं पढ़ा लिखा, और पढ़ा लिखा करके आज मैं अपने गांव की सेवा कर रहा हूं. आज मैं अपने देश में खेती ऐसे कर रहा हूं जैसे इतनी ज्यादा सफल, और इतनी ज्यादा सफलतापूर्वक मैं फल को पैदा कर रहा हूं, और सब्जियों को पैदा कर रहा हूं, अनाज को पैदा कर रहा हूं. तो वी फील फॉर्चुनेट. कोई IAS अफसर बन जाता है, बहुत खुशी मिलती है कि आई एम द फॉर्चुनेट पर्सन. कभी जाके उससे पूछे, किसी ऐसे पॉलिटिशियन के नीचे में काम करने को मौका मिलता है जो उसको अपना नौकर बना के रखता है, अपने घर वालों को कहता है जा इसको घुमा के ले आओ, जाओ उसके लिए सब्जी लेके आ जाओ. तो इवन by achieving the post of an IAS officer, you have been treated as a servant. So do you feel that that person is fortunate, or he is feeling himself as a fortunate person? Never. So भाग्य, सौभाग्य और दुर्भाग्य, ये हमारे माइंड की गेम है. हम जिस स्थिति में पहुंचते हैं, हमें जो कुछ भी मौका मिलता है करने को, हम करेंगे, और करने के बाद उसमें हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और उसका काया पलट कर देंगे, जो कुछ भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली.
few days back I was just going through a person is दशरथ माझी, झारखंड का एक बंदा है, उस पर एक शायद फिल्म भी बनी है माझी करके। तो दशरथ माझी की जो हिस्ट्री है, ही वॉज अ लेबर इन गया, लेकिन रहने वाला था वो झारखंड का। जहां वो रहता था उसके पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था। तो उसकी वाइफ की तबीयत खराब हुई। आई डोंट नो व्हेदर इज व्हाट इज डिलीवरी केस और आई डोंट नो व्हाट, बट उसकी वाइफ की तबीयत खराब हुई। जब वो वाइफ को लेके हॉस्पिटल जाने लगा, वो पहाड़ बीच में था। उस पहाड़ को पार करने में, ऊपर चढ़ के फिर उस पार जाने में बहुत टाइम उसको लग गया, और इस बीच में उसके वाइफ की डेथ हो जाती। ये आदमी सोचता है, या हम लोग क्या सोचेंगे इस कारण, कितना दुर्भाग्यशाली है, पत्नी को खो दी। बट वही आदमी उसको इंस्पिरेशन के रूप में लिया कि इफ आई कुड नॉट सेव माई वाइफ, सो आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू सफर लाइक दिस। और उसने 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर करीब 110 मीटर की लंबी पहाड़ के नीचे से रास्ता उसने बना दिया। 30 फीट चौड़ी, 25 फीट हाइट और 1.25 किलोमीटर की लंबाई। उसने कुछ भी नहीं, कोई उसके पास टूल नहीं था, कोई इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं था कि वो हाई टेक्नोलॉजी के साथ उसमें रास्ता बनाएगा और कुछ करेगा। साधारण कुदाल और जो छेनी वगैरह जो भी थी, उसके हेल्प से ही डिड इट। और नाउ ही इज फीलिंग फॉर्चुनेट इनफ। तो सवाल यह है कि हमारे साथ जो कुछ होता है, हमारे साथ अगर कोई चीज होता है तो हम कहते हैं हमारे लाइकिंग के हिसाब से नहीं है, तो हम कहते हैं कि भाई दुर्भाग्य है हमारा। लाइकिंग के हिसाब से हो जाती है तो हम कहते हैं सौभाग्य है हमारा। दूसरा सवाल उठता है कि जैसा अभी राधिका जी ने कहा है, गीता में आया है कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सो डूइंग एक्शन, डूइंग कर्म इज इन माई कंट्रोल। वो हमारे हाथ में। आई एम शेयरिंग यू वन पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल विथ मी। बिफोर गोदरेज आई वॉज विथ सम फार्मास्यूटिकल कंपनी, और उसमें एक श्रेया कंपनी थी, रैलिस इंडिया करके, उसका नाम बदल के श्रेया लाइफ साइंसेज हो गया था, जो टाटा की कंपनी थी। तो उसमें मैं मैनेजर पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया। तो मिस्टर MP शर्मा वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंपनी एंड मिस्टर RK शर्मा वाज द GM। हमारे बायोडाटा में लिखा हुआ था कि हॉबीज में हमने लिखा हुआ था रीडिंग बुक्स एंड मेडिटेशन। मिस्टर MP शर्मा जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू कि मिस्टर विनय, यू सेड you have written that reading books, what kind of book do you read? मैंने कहा कि normally I prefer to read religious books, that is all kind, not related to one, but yes, preferably I more focus on Kabir book. उसने बोला okay, so what is the summary or summary of Kabir, what Kabir says? So I explained that Kabir says that God is everywhere, we need not to wander here and there, we just go inside and you will find it. So do your good works, do your good duties, don't do wrong things, and search the God inside you and you will get it. So that is the summary. The next question he asked me, Mr. Vinay, right now you said that God is inside everyone. So whatever we will be doing, जो कुछ भी हम काम करते हैं, so भगवान करवाते हैं, मैं नहीं कुछ करता। So मैं चोरी करूं, मैं करप्शन करूं, मैं डाका डालूं, मैं काम चोरी करूं अपने जॉब में, so this is all done by God, so I am nowhere responsible for this. तो मैंने कहा कि no sir, this is not like this. Then मैंने बोला sir, we people are sitting in this chamber, in this room, AC is on because we feel hot. So suppose after some time we feel cold, so what we will do? With the remote we can switch off this AC. Yeah. हमने बोला कि suppose
at the same time, again, there is a situation. You feel hot, you want to switch on the AC, but current is not coming, like electricity is not there. So can you do anything? Well, no, I can't do. Well, in the same fashion, God is inside us, superpower is inside us, means electricity is going on. But we do have switches of knowledge, conscience, विवेक, बुद्धि, ये सब सारे स्विचेज हैं जो ऑलमाइटी ने, जो सुपर पावर ने हमें दिया है. विद दैट स्विचेज वी कैन स्विच ऑन द एसी, स्विच ऑफ द एसी. हमको लगता है कि ये काम गलत है, वी कैन स्टॉप इट. मुझे लगता है कि ये काम सही है, वी कैन स्टार्ट इट. सो द स्विचेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस टू डू गुड वर्क एंड बैड वर्क. बट लोग क्या सोचते हैं कि नहीं भाई, भाग्य के भरोसे रह जाओ. और मैं आपको बताऊं कि भाग्य के भरोसे होना, अगर जैसा गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कहा कि अभी तक तुमको हमने बताया था कर्म के बारे में, मैं विश्लेषण कर रहा था, अब मैं तुमको ज्ञान के बारे में बताता हूं. ज्ञान उससे भी श्रेष्ठ है. तो अर्जुन पूछते हैं कि अगर ज्ञान इससे श्रेष्ठ है तो इतनी देर आप हमें इस कर्म में क्यों लिप्त करने की कोशिश कर रहे थे. फिर कृष्ण भगवान उनसे बताते हैं कि तुम अगर ये सोचते हो कि ज्ञान का मार्ग कर्म से भागने का मार्ग है तो गलत सोचते हो. कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण नहीं रह सकता. तुम कुछ नहीं करोगे तो बैठोगे, तो बैठना भी एक कर्म है. तुम कुछ नहीं करोगे, सोओगे, सोना भी एक कर्म है. सो बिना कर्म किए हुए nobody can live a life. कर्म तो उसको करना पड़ेगा. अब सवाल उठता है कि हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते, तो क्या करें और क्या न करें, ये हमारे हाथ में. तो जो हमारे हाथ में है कि कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते, तो हम अच्छा ही कर्म क्यों ना करें. अब सवाल उठता है कि हम कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म का परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो इसके दो पहलू हैं. अगर एक हमारे अनुकूल वो परिणाम नहीं है तो वी विल अगेन गेट अप एंड फाइट अगेंस्ट दैट परिणाम. अगेन फिर से हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि कर्म ही उसका उपाय है. कर्म से ही अगेन हम भाग्य को बदल सकते हैं. एक लोग क्या करते हैं, फिर से कर्म करते हैं. जैसे माझी ने काम किया कि ठीक है वो हो गया सो हो गया, चलो व्हाट नेक्स्ट, आगे हम भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, कैसे हजारों लाखों आदमी के भाग्य को बदल सकते हैं जिससे हमको हैप्पीनेस मिलेगी, जिससे हमको खुशी मिलेगी. और अल्टीमेटली सौभाग्य क्या है, हमारी खुशी. दूसरा तरीका यह है कि हम जो चाहते थे वो नहीं मिला, तो हमने क्या किया कि भाग्य की खोज में चले गए. और भाग्य के खोज में मैक्सिमम आप देखोगे पीपल विल एक्सप्लॉइट अस. दे नॉर्मली एक्सप्लॉइट अस. आज कोई मेडिकल, आप हमें कोई तकलीफ हो जाती है, अगर मेडिकल की हमें जानकारी नहीं है कि व्हाट दिस डिजीज इज, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर हमें जो कहता है हमें आंख बंद करके मानना पड़ता है. वी कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है. और उसमें अगर सही बंदा मिल गया तब तो आपको सही ट्रीटमेंट हो जाएगी. बट अगर वो बंदा लालची है, लोभी है, तो आपको एक्सप्लॉइट करेगा और आपको वो चीजें माननी पड़ेगी. तो एक्सप्लॉइट मत होइए. लोग क्या करते हैं, भाग्य के चक्कर में कभी किसी ऋषि मुनि के पास, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी ज्योतिष, कभी कहीं कहाँ कहाँ नहीं भटकते. भाई
आप अगर भाग्य की खोज में जा रहे हो तो फिर कर्म क्यों कर रहे हो, क्यों जा रहे हो ज्योतिष के पास? वो भी तो कर्म कर रहे हो। तो कर्म ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्योतिष विद्या गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई ऋषि मुनि का आशीर्वाद गलत, ये सब है, बट कर्म सबसे सर्वोपरि है। हम जितना ज्यादा कर्म करेंगे, कर्म से ही अपने भाग्य को बदल सकते या अपने अचीवमेंट को बदल सकते, और जो हमें मिला है उसमें हमें खुशी ढूंढने की जरूरत है। कोई अगर ये सोचता है कि हर आदमी को वही चीज मिल जाएगी जो वो चाहता है, वो नहीं होता है। और जैसा मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि आपको वो चीजें मिल भी गई सपोज करिए थोड़ी देर के लिए, बट उसमें आपकी खुशी छिपी है कि नहीं छिपी है, कैसे मालूम आपको? लोग शादी की आयोजन करते हैं, मैरिज करते हैं, क्यों करते हैं भाई? खुशी के लिए। कुछ दिन के बाद लोग डाइवोर्स लेते हैं, क्यों लेते हैं भाई? खुशी के लिए। हमारी खुशी है कि मैं अब तुमसे अलग रहना चाहता हूं। सो इट मीन्स ना तो शादी सौभाग्य है, ना डाइवोर्स सौभाग्य है, न शादी दुर्भाग्य है, न डाइवोर्स दुर्भाग्य है। सिचुएशन इज पॉजिटिव और निगेटिव, सौभाग्य और दुर्भाग्य। अगर आप शादी के बाद अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, आपको जीने का तरीका मालूम है, तो मैरिज लाइफ इज बोन फॉर यू। अगर नहीं तो दिस इज द सेम मैरिज कर्स फॉर यू। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी अच्छी अच्छी जगह शादी हो गई तो हम सौभाग्यशाली हैं, और गलत जगह शादी हो गई तो दुर्भाग्यशाली। कई बार आप देखोगे, आप लड़के की बात करो या लड़की की बात करो, कोई लड़का है उसको बहुत सुंदर लड़की नहीं मिलती है, या कोई लड़की है उसको बहुत सुंदर लड़का नहीं मिलता है, और जब शादी होती है तो कहते हैं बड़ा दुर्भाग्य, देखो ये लड़का कैसे देखने में, ये लड़की कैसे देखने में, कोई देखने में अच्छी नहीं, सुंदर नहीं। लेकिन बाद में पता चलता है कि शी इज सो ब्यूटीफुल बाय हार्ट और ही इज सो ग्रेट बाय हार्ट। हम इंजॉय करते हैं लाइफ को, हमारी लाइफ इतनी सुकून की होती है, इतनी हम हैप्पीनेस के साथ लाइफ जीते हैं। तो कौन सा सौभाग्य, पहला वाला सौभाग्य कि दूसरा वाला सौभाग्य? तो हमारी जो सोच है, हम सिर्फ उसी सोच के दायरे में अपने आप को सोचते हैं कि हमारा क्या सौभाग्य है और क्या दुर्भाग्य। भविष्य में क्या होने वाला है? कहते हैं कि फलानि ग्रह चारेन सूचयंती मनीषिणः को वक्ता तारतम्य तमेकम वेदसः विना। संस्कृत का एक श्लोक है, इसका मीनिंग है कि एस्ट्रोलॉजी या जो भविष्य वक्ता है वो एक आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि भविष्य में यह होने वाला है, लेकिन विथ सर्टेनिटी हु कैन टेल एक्सेप्ट दैट ऑलमाइटी, एक्सेप्ट दैट सुपर पावर, उनके अलावा कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए बहुत ज्यादा भ्रम में भटकने की जरूरत नहीं है। और कई बार अगर हम भाग्य के भरोसे, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं भाग्य भाग्य भाग्य, भाग्य के भरोसे अगर हम अटक जाते हैं, रह जाते हैं, तो हम कर्म करने में पीछे चले जाते हैं, और जो हमारा भाग्य साथ भी देता वो भी गलत हो जाता है। दो राजा थे, दोनों में लड़ाई ठन गई, बीच में एक नदी थी, दोनों में लड़ाई ठन गई कि पानी मैं लूंगा तुम लोगे, ऐसे करके बहुत लड़ाई छिड़ गई। और दोनों के एक कॉमन गुरु थे जो उसी जंगल में रहते थे। तो एक एक करके दोनों मिलने गया। पहला वाला मिलने गया, राजा से पूछा कि बताइए हमारा भाग्य क्या है, क्या कहता है, मेरे उस राजा के साथ लड़ाई होने वाली है, सो क्या कहता है हमारा फॉर्चून। तो उसको कहा कि देखो तुम्हारे भाग्य में तो जीत लिखी हुई है, तुम तो जीत जाओगे इस युद्ध को। वो खुशी के मारे आता है, लौट आता है अपने राज्य। दूसरा राजा पहुंचता है, उसी गुरुजी से, उस मुनि से पूछता है कि भाई बताइए मेरा क्या होने वाला है। उसने कहा कि देखो तुम्हारे भाग्य में तो हार लिखी हुई। वो भी लौट आता है। अब क्या होता है कि जो पहला है, जिसको गुरुजी ने बताया कि सौभाग्य है तुम जीत जाओगे, भाग्य में तुम्हारी जीत लिखी, वो चादर तान के सो जाता है, कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं करता, ना तो अपने सेना को किसी तरह की तैयारी करता है, ना कुछ भी नहीं करता, घोड़े की नाल वगैरह सही करना, कुछ भी नहीं।
दूसरा कहता है कि अच्छा, भाग्य में लिखा हुआ है कि हारना ही है, तो क्यों ना एक इतिहास रच दे, हारेंगे तो हारेंगे। इस तरह की लड़ाई करेंगे कि लोग याद रखेंगे कि यार क्या लड़ा था ये राजा। और उसने पूरी तैयारी, इस लेवल की तैयारी करता है वो कि अपने सेना और अपने खुद एज ए सेनापति के रूप में खुद ही आगे बढ़ के आता है। पूरी घोड़े की नाल ठोकना, पूरी तैयारी करना, तलवार को चमकाना और क्या क्या जो भी तैयारी होती, दे ऑल प्रिपेयर्ड। और लड़ाई होती है तो जिसके भाग्य में हार थी वो जीत जाता है। दोनों गुरु के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि ये आपकी बात तो झूठी हो गई, ये कैसे? बोला क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे आपने बोला था कि ये इसके भाग्य में जीत है और इस भाग्य में हार, बल्कि उल्टा हो गया। बोला देखो, मैंने गलत नहीं कहा था। उस समय जो भाग्य बता रहा था वो इसी के पक्ष में जीत थी और इसी के पक्ष में हार थी। लेकिन कर्म से तुमने, अब दोनों ने अपने अपने भाग्य बदल लिए। तुमने कर्म करना छोड़ दिया, कहा कि अब तो जीत है ही हमारे हाल में, हमने क्या करना है। और इसने कहा कि अच्छा, हार है तो मैं इतिहास बदल दूंगा। इसके हार नसीब में जीत आ गई। सो इवन इफ वी बिलीव इन सम सुपर पावर कि हमारे करने के बावजूद भी आता है, तो मैं आपको दो चीज कहूंगा। एक चीज कि आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते, तो डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। दिस इज द गीता ज्ञान कि काम किए बिना हम नहीं रह सकते, तो डू योर बेस्ट, अच्छे से अच्छा काम करिए जो आप कर सकते हैं, एंड फॉरगेट द रेस्ट। क्या होने वाला छोड़ दो आप, उसका परिणाम अपने आप आएगा। दूसरा है कि अगर आप भाग्य पे ही सोचते हो कि हाँ भाग्य कुछ चीज है, तो उसके लिए भी आपको कर्म ही करना है। भाग्य को भी अगर बदलना है तो भी कर्म ही करना है। तो अकर्मण्य होके कि हम कोई काम नहीं करेंगे, अब मैं बैठ गया, कुछ नहीं हो सकता। तो टुडे what I would like to communicate to all of you, first of all, believe in कर्म, कर्म and कर्म। कर्म के अलावा कुछ भी नहीं। सेकेंड इज कि कर्म आपने किया और आपके लायक कोई चीज रिजल्ट नहीं आई, डोंट गेट मोटिवेटेड। आप उसको गले लगाओ और गले लगाकर इतिहास बदल दो कि ओके ठीक है, अगर मुझे ये काम मिला है तो आई विल डू दिस जॉब लाइक एनीथिंग, और यही एक हिस्ट्री बन जाएगी। आई एम कोटिंग, आई डोंट नो वेदर दिस इज राइट और नो टू कोट, बट जो मैंने सुना है, फॉरगिव मी इफ इट इज रॉन्ग और राइट, सुना है हमने, मिस्टर टीएन सेशन थे, अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं। He was a very loyal person, very honest person, very strict person, और इतने स्ट्रिक्ट थे कि अपने काम में वो किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते थे। तो जो मुझे सुनने में आया है कि he was a candidate to be appointed as president of India, इस कैलिबर के थे वो, because people were not liking him because of his strictness, because of his what you call honesty, whatever it is। तो उसकी वजह से उनको लोग, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में नहीं पसंद करते थे, तो उनकी संटिंग पोस्ट कर दी गई थी एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जब वो आए तो लोगों ने कहा कि यार इसका तो एक तरह से डिमोशन हो गया। और आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बी रिकॉलिंग इट कि टीएन सेशन से पहले हम लोग, इवन आई वॉज नॉट नोइंग द इलेक्शन कमीशन बॉडी कि इसकी कितनी वैल्यू होती। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या इंडिया की। सेकेंड पोस्ट आई थिंक कहते हैं इसको, कि फर्स्ट पोस्ट इज प्रेसिडेंट, सेकेंड पोस्ट इज सुप्रीम कोर्ट एंड थर्ड पोस्ट इज परहैप्स चीफ इलेक्शन कमीशन। तो इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट विच वी वेर नॉट अवेयर ऑफ, और जब वो आए तो उन्होंने इलेक्शन कार्ड जारी करवाया कि बिना इलेक्शन कार्ड के इलेक्शन नहीं होंगी, कहीं भी अगर गुंडागर्दी हो रही है, कहीं पे जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग हो रहा है, आई विल नॉट अलाउ दिस।
So he acted in such a great way कि इन्होंने लोगों को बता दिया कि टीएन सेशन क्या है और चीफ इलेक्शन का पोस्ट क्या होता है। मेरा कहना यह है कि आप अपना कर्म करिए, उस कर्म में जो आप चाहते थे वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो जो मिलता है उसको खुशी खुशी गले लगा के एंड देन यू चेंज द हिस्ट्री। आप ऐसा कर दो कि लोगों को लगे, लोग तरस जाए आपके बाद जो आपको मिसफॉर्चून हुआ है आपके हिसाब से कि आप चाह रहे थे कुछ और बनना और आप कुछ और बन गए। तो जो काम आपको दिया गया है, जिस काम पे आपको जॉब मिली है या जिस काम के लिए यू गॉट द अपॉर्चुनिटी, उस काम को आप एक ऐसा काम बना दो कि नेक्स्ट टाइम पीपल शुड एस्पायर फॉर दैट पोस्ट। और ये हमारे हाथ में। आज कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई बंगला खरीदना चाहता है, कोई महंगी गाड़ी खरीदना चाहता है। आज आप इस कोविड-19 की पोजीशन में आप देखिए कौन काम आ रहा है। जो आदमी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा था कल तक कि हमारे पास अरबों रुपए हैं, गाड़ी है, पोस्ट हैं, किसी भी पॉलिटिशियन को कभी भी मैं फोन मिलाऊंगा, कोई भी हमें हॉस्पिटल मिल जाएगी और हमारा इलाज हो जाएगा, आई विल बी परफेक्ट। आज वही पॉलिटिशियन की तबीयत खराब होती है और वो जिंदा नहीं बचते। आज उनके जो रिलेटिव है जिनके पास अरबों रुपए हैं, दे हैव ऑल द पावर, दे हैव ऑल द कॉन्टैक्ट, हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं, डॉक्टर नहीं बचा पाता। अरे आप उसकी बात छोड़िए, अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे, लॉट ऑफ लाइक रिनाउंड डॉक्टर्स आर डाइंग, जिसको सब पता है कि क्या इलाज होना चाहिए, एंड फ्रॉम डे वन ही कैन ट्रीट हिमसेल्फ, दैट मच अपॉर्चुनिटी ही हैज, बट स्टिल दे आर डाइंग। क्या मिल रहा है? क्या हम पाना चाह रहे थे और आज वो पा के क्या हम अपने आप को फॉर्चुनेट पा रहे हैं? कोई डॉक्टर है, अपने बच्चों का, अपनी माँ का, अपने पिताजी का इलाज करता है और अपने हाथों से इंजेक्शन दे रहा होता है, अपनी हाथों से इलाज कर रहा होता है और अपने सामने में देखता है कि मेरी माँ, मेरे फादर की डेथ हो जाती है। वो क्या सोचता है कि कितना अनफॉर्चुनेट हूं मैं, इतनी पढ़ाई की, अपने माँ को, अपने फादर को, अपने बच्चों को नहीं बचा पाया मैं। सो फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट यू अचीव, इट इज ऑल सिचुएशन डिपेंडेंट। तो जो भी हमारे हाथ में है उसको हम फॉर्चुनेट के रूप में कन्वर्ट कर लें, ये हमारे हाथ। हम उसको अपना सौभाग्य बना लें, उसकी काया पलट कर दें, उस सिचुएशन को ऐसा बना दें कि लोग उसके लिए तरस जाए कि यार काश मैं भी ये काम कर लेता, काश मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी होती। दिस इज 8:08 हो गया। बात तो बहुत रहती है, अगर बात करने लगे तो आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, बट आई वुड नॉट लाइक टू टेक टू मच बिकॉज नॉर्मली टाइम का मैं बड़ा ही पाबंद हूँ। सो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा टाइम आप कर लूँ। सो वी विल स्टॉप हियर ओनली। और कुछ क्वेरीज अगर हैं इससे रिलेटेड, भाग्य और कर्म से रिलेटेड, इफ सम क्वेरीज आर देयर, सो यू आर मोस्ट वेलकम। And again, I would be very much thankful to all of you कि you people participate here, and we can say that you motivate us as well, that I can serve the society by whatever I have achieved, whatever I have gained, so that way. So now over to all of you. If any queries or any suggestion is there, so I will be grateful for that. And also I would like to have your suggestion. So should we continue on a weekly basis, or should we keep now for 15 days in a week, like that way? So both the what you call feedback I would like to have from all of you.